All right, so today we are starting S1 Probability and Statistics 1, Paper 5. Paper 5, variant 2, 9709. October, November 2024 paper. The paper time is 1 hour 15 minutes. And the total marks for this paper is 50 marks. Starting with question number 1, it says, at a college, the student choose exactly one of tennis, hockey, or net to play. The table shows the number of students in Year 1, Year 2 at the college playing each of these sports. One student is chosen at random from the 120 students. Event X and N are defined as follows. X is the event student in Year 1 and N is the event the student play netball. It said find P bracket X slash N. तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है? What we need to find out? This means we need to find out probability of X given that N occurred. N dash नहीं ना, N लिखा हुआ है, N occurred लिखा हूं. यानी probability of the student in one year 1, given that they play netball. Given that they play netball. So from the netball students, how many students are netball? 12 plus 28, which is 40. So from the netball students, we need to find out the probability that a student is in Year 1. Year 1 student are 12. So 12 by 40 is the main answer. You need to write 12 by 40. फिर इसको simplify कर लें बेशक. But 12 by 40 is more important thing to write. Yani 3 by 10 is going to be your answer. Secondly, they are asking you, देखो probability of N given that X has occurred. तो देखो यहां पर वेरिएबल की फॉर्म में तो मैं ही बोलूंगा, बट एक्चुअल सिनेरियो क्या है? Probability of student playing netball given that they are in Year 1. तो Year 1 में बेटा हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? There are 16 plus 22 plus 12, which is 50. So out of these 50 students, how many play netballs? So there are 12 who are playing netball. So 12 by 50 is going to be your answer. So 12 divided by 50, you can just simplify them. 6 by 25. ये आपका आंसर हो जाएगा. Then determine whether or not X and N are independent events. तो देखो, for independent events, we have a checker. What kind of checker is this? देखो बेटा, we need to find out the probability of X. We need to find out the probability of N here first. And then we need to find out probability of X intersection N. There are total how many students? We need to calculate the total number of students here first. Over here, we have got 120 students. So out of 120 students, I'm calculating the probability of X independently. I'm not making any conditions here. Independently. So I got the probability of X. X is the students in Year 1. There are 50 students in Year 1. N is the student playing netball. Netball students are 40. And common students of X and N. This is X, this is N. 12 students are common in both of these events. So we got the independent probabilities of X and N. And when we combine it, combine means when we multiply it, we got the probability of X and N both, which means 40 by 1, 50 by 1, 120 and 40 by 120. Let's just calculate the answer. 50 into 40 divided by 120 into 120, which is 5 by 36.
Is this the same probability of combining probability that we just saw over here, which is x intersection n 12 by 120, which is 1 by 10? No, sir, they are not equal. Since their independent probability is not equal to their combined probability. When their independent probabilities combine together, they are not equal to their x intersection n. They are not equal. Therefore, they are not independent. They are dependent to each other. अगर equal होता तो we are going to say कि हमारे पास ये independent है. Now, one of the students who play netball takes 8 shots at a goal. On each shot, the probability that she will succeed is 0.15. Probability of success. Independently of all other shot. Independently of other shot. One shot is not independent on other. Find the probability that she succeed on the fewer than 3 of these shots. Now see, number of trials are fixed. 8 shots. So I'm going to apply binomial distribution. Number of trials fixed bhi hai, and they are independent as well. So we need to calculate the probability of x is less than equals to less than 3. Fewer means less than 3. Which means we need to calculate the probability of x is equal to 0, x is equal to 1, and x is equal to 2. ठीक है ना? The formula for binomial is NCX q power n minus x p power x. The value of n is the number of trials, which is 8. The value of p is success probability, which is 0.15. The value of q is the probability of not success, failure, which is 0.85. 1 minus 0.5, 0.15. So I'm going to apply this in the formula NCX 8C0 0.85 power 8 minus 0, 0.15 power 0. 8C1 0.85 power 8 minus 1, 0.15 power 1. Then 8C2 0.85 8 minus 2, 0.15 power 2 here. Okay, I'm going to calculate all these values from the calculator. Zero point two seven 2724, 0.3846, and then 0.2376. ठीक है ना? I'm going to add all these values. Zero point 2724 plus 0.3846 plus 3846 plus 0.2376. It is 0.8946. Three certificate में आंसर हो रहा है 0.895. Right? Now we have question number 2. In this question, you are saying find a number of different elements of 9 letters from the word algebraic. So 9 letters हैं. We need to arrange all 9 letters. देखो यहां पर 9 letters हैं. And we need to arrange all 9 letters. This is very important.
तो देखो मैं सबको अरेंज कर रहा हूं 9 फैक्टोरियल, बट देर आर सम कॉमन लेटर्स. देखो यहां पर a is twice and there is nothing twice apart from a. कोई रिपीटेशन नहीं हो रही. So others are 7. So 9 factorial divided by 2 factorial into 7 factorial. Sorry, not 7 factorial. 9 factorial divided by 2 factorial only, the repetition. So get the answer. Don't leave the answer like this. Find out the answer. This is the answer for part A. Then part B says find the number of arrangement of 9 letters in the word algebraic. Again, they are asking for arrangement here, in which there are no more than 2 letters between 2 A's. No more than 2 letters between 2 A's. So see, in this, we have to make the condition. What kind of condition? देखो, A के दरमियान no more than 2 letters. It means we can have 0 letters between 2 A's. We can have 1 letter between 2 A's. We can have 3 letters between 2 A's. Sorry, 2 letters between 2 A's. तो ये हमारे पास कंडीशन हो सकती है. देयर आर गोइंग टू बी 3 कंडीशंस है. 1 2 3 कंडीशंस है. नो मोर देन 2 का मतलब क्या है कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकती. 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 लेटर भी हो सकता है बीच में. तो देखो बेटा, इफ यू कंबाइन ऑल दीज परमुटेशन, देखो सबका आंसर निकाल रहा हूं मैं. सो इट इज गोइंग टू बी 9 factorial. Sorry, it is going to be 7 factorial, the 7 letters arrangement. ठीक है? You can have 7 factorial here for this 7 letter arrangement. But you need to focus one more thing. कि बेटा, if there is no letter between these two A, 7 factorial तो एक केस है. क्या पता ये दोनों एस यहां पर हो, यहां पर भी नो लेटर्स बिटवीन 2 A हो गया. क्या पता ये यहां पर हो, क्या पता यहां पर हो, क्या पता यहां पर हो, क्या पता यहां पर हो. So there are going to be not just one condition, there are going to be 8 conditions. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो बेटा इस 7 फैक्टोरियल की there are going to be 8 conditions, जिसमें there are going to be no letter between these two A's. Similarly, यहां पर भी 7 फैक्टोरियल होगा. This 1 2 3 4 5 6 7. But how many condition will I have then? तो देखो बेटा, मेरे पास कंडीशन कितनी हो जाएंगी? This one condition, 2 3 4 5 6 7. तो बेटा, I'm going to have 7 conditions for the same. And then I'm going to have 2 letters between these two. How many? What is a factorial here? It is going to be 7 factorial. क्योंकि 7 letters है ना, ये अरेंज हो रहे होंगे यहां पर. And then conditions for this 7 factorial are going to be 1 2 3 4 5 6. You're going to multiply it by 6 here. ठीक है ना? अच्छा, lots of students are going to ask, सर आपने इन ए की परमुटेशन क्यों नहीं करी? बेटा आप कर लो. आप करोगे 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, रिपीटेड परमुटेशन है, 1 ही आंसर आना है.
बट जब मैं इसकी 7 फैक्टोरियल कंडीशन बना रहा हूं तो बेटा मैं ए को आपस में फिक्स कर रहा हूं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं वैसे भी, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करूंगा, आई विल गेट 1। तो इफ यू वांट आप यहां पर कर लो, it won't affect anything in your answer. At the end, you'll find the answer. The answer is 105,840. You're going to add all these answers, all these conditions here. Coming to question number 3, it says a fair coin, an ordinary fair 6-sided dice is thrown at the same time. The random variable x is defined as follows. अब देखो when it says fair coin, it means कि यहां पर एक head है एक tail है. When it says fair 6-sided dice, इसका मतलब यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. फेयर डाइस है. नॉर्मल हमारे पास डाइस होता है. 6-sided डाइस का मतलब है 1 2 3 4 5 6 है, इसको इसमें होगा. और फेयर का मतलब है हर किसी की प्रोबेबिलिटी सेम होगी. और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इफ द कॉइन शोज अ टेल, x is twice the score on the dice. If the coin shows head, x is the score on the dice. If the score is even, and x is 0 otherwise. यानी अगर इवन नंबर आया है तो वही आपका स्कोर बन जाएगा, वरना ऑड आया तो ऑब्वियसली आपका स्कोर 0 हो जाएगा. ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो देखो यहां पर x शो कर रहा है स्कोर को. x इज द स्कोर. आपने ऊपर पढ़ा ना, x स्कोर का रिप्रेजेंट कर रहा है. तो व्हाट स्कोर आई कैन हैव, पहले उसकी लिस्ट बना लेते हैं. देखो अगर टेल आया तो योर स्कोर कुड बी 1 का स्क्वायर, यानी डाइस में बना गया तो 1 का स्क्वायर. योर एक्स यानी स्कोर वुड बी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर. सॉरी, इट्स अ स्क्वायर ट्वाइस. इट इज ट्वाइस. 2 1s are 2. आपका स्कोर ट्वाइस हो जाएगा ना. दिस इज गोइंग टू बी योर स्कोर, यानी दिस इज गोइंग टू बी योर एक्स. If the tail comes in the fair coin, ये आपके पास पॉसिबल स्कोर आ गए. और जब हेड आएगा तो इवन नंबर आया तो योर स्कोर इज योर, इफ द स्कोर x is the score on the dice, if the score is even, तो इवन आएगा तो इवन स्कोर हो जाएगा. 1 आया तो 0 हो गया स्कोर, 2 आया तो 2 ही स्कोर बन जाएगा, 3 आया तो 0 बन जाएगा, 4 आया तो योर स्कोर इज 4, 5 आया तो स्कोर इज 0, और 6 आया तो स्कोर इज 6. देखो ना, यू नीड टू फोकस कि अगर मैं एक कॉइन और एक 6-साइड डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो बेटा टोटल आउटकम्स ट्वेल्व आएंगे. अब आओ मैं पीडी टेबल बनाना सिखाऊं आपको. प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक्स स्कोर कह रहे हैं हम लोग. तो बेटा स्कोर की वैल्यू 0 भी हो सकती है. पॉसिबल स्कोर के क्या आ रहे हैं? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. तो आउट ऑफ टोटल 12 इवेंट्स, 2 स्कोर कितनी दफा, 0 स्कोर कितनी दफा बन रहा है? 1 2 3. तो 0 स्कोर आने की रेडी 3/12 हो जाएगी. 2 स्कोर कितनी दफा बन रहा है? 1 2. तो 2 आने की, 2 स्कोर बनने की रेडी 2/12 हो जाएगी. 4 कितनी बन रहा है? 2 दफा 2/12. 6 कितनी दफा है? 2/12. 8 कितनी दफा है? 1 आउट ऑफ 12. 10 कितनी दफा है? 1 आउट ऑफ 12. 12 कितनी दफा बन रहा है? एक दफा. इन सब का सम कर लो, सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही आ रहा होगा.
अब ये आपका पीरियड टेबल बन गया, ठीक है ना। यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/4, 1/6, 1/6, 1/6, बाकी सब तो सेम ही रहेगा ना ये। तो सिंप्लीफाई ना भी करें, दैट्स टोटली फाइन। पीरियड टेबल चाहिए था, वो हमने बनाकर यहां पर दे दिया। नाउ इन पार्ट बी देर आस्किंग फॉर द वेरिएंस। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को। तो आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए यू विल बी नीडिंग दिस टेबल। अच्छा, मीन का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं यहां पर, सम ऑफ एक्स पी एक्स होता है। तो अब आपने दोनों चीजें करनी है, तो फॉर्मूला हम पहले से एक मरतबा टेबल को देख लेते हैं। पहले मैं यहां पर आपके सामने एक्स स्क्वायर मालूम कर लेता हूं। 0, 4, 16, 36, 64, 100, 144, ठीक है। और यहां पर मैं एक्स पी एक्स भी मालूम कर लेता हूं, और एक्स स्क्वायर पी एक्स भी मालूम कर लेता हूं। टेबल भी कर लेते हैं काम, काम थोड़ा सा। यू कैन जस्ट यूज द कैलकुलेटर फॉर दिस, और आप क्विकली ये मालूम करके दिखा सकते हो। 0 मतलब है 3/12 इज 0। पहले मैं एक्स पी एक्स मालूम कर रहा हूं। 2 मतलब है 2/12। मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बस 4/12। 4 टू द 8/12, 6 टू द 12/12, 8 मतलब 8/12, 10/12, 12/12। अभी मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, बस एक्स स्क्वायर क्या है, 0 मतलब है पी एक्स। 0 मतलब है 3/12, 0 हो गया। 4 मतलब है 2/12, 8/12। 16 मतलब है 2/12, 32/12। 36 मतलब है 2/12, 72/12। और 64 मतलब है 8/12, 1/12, 64/12। 100 मतलब है 1/12, 100/12। और 144 मतलब है 1/12। एक्स स्क्वायर पी एक्स भी मैंने यहां पर निकाल ली सारे। अब देखो, मुझे अगर वेरिएंस चाहिए तो एक्स स्क्वायर पी एक्स का सम चाहिए। ये रहा एक्स स्क्वायर पी एक्स, इसका सम 8 + 32 +72 +64 +100 +144, ये रहा 420/12। फिर देखो आसानी है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने में आसानी है। 4 + 8 + 12 +8 + 10 +12, 54/12। आपके पास एक्स पी एक्स का सम भी आ गया, एक्स स्क्वायर पी एक्स का सम भी आ गया। देखो वेरिएंस कितना हो जाएगा, 420/12 -54/12 का स्क्वायर। दिस इज योर मीन, दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसका स्क्वायर कर दें आप, तो अब आप देखें 420 ÷ 12 -54, या 59/4, 14.75। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर।
देखो इन क्वेश्चन दे आर सेइंग the heights in meter of white pine trees are normally distributed with mean 19.8 standard deviation 2.4. In a certain forest there are 450 white pines, total pines there यहाँ पर. How many of these trees would you expect to have a height less than 18.2 meters? तो बेटा फेवरेबल आउटकम अगर आपने निकालना है, हाउ मेनी ट्रीज वुड यू एक्सपेक्ट? तो आप प्रोबेबिलिटी को टोटल से मल्टीप्लाई करवा देते हो. टोटल इज दैट व्हाट वी ऑलरेडी नो इज 450. 450 पाइंस हैं. कितने पाइंस ऐसे हैं जिनकी जिनकी हाइट 18.2 से कम है? वो प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, उस प्रोबेबिलिटी को बेटा 450 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, आई विल गेट द आंसर. बट यहां पर बस याद रखें, एक्स फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहले मीन लिखा जाता है 19.8 और फिर वेरिएंस लिखा जाता है यानी 2.4 का स्क्वायर, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन 2.4. तो आपने सबसे पहले यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू जेड टू फाइंड आउट द वैल्यू of the probability from the table. 18.2 minus mean upon standard deviation 2.4. 18.2 minus 19.8 divided by 2.4. It is minus 0.666. मैंने आपको बताया था बेटा अगर z की वैल्यू 4 डेसिमल प्लेस पर होगी तो आपने उसको कन्वर्ट करना है 3 डेसिमल प्लेस पे. z इज ऑलवेज 3 डेसिमल प्लेस. हमेशा 4 पे लिखेंगे और फिर 3 में कन्वर्ट करेंगे. ये 666 चलता हुआ आ रहा था. अब देखो अगर मैं केस वाइज देखूं, अगर मैं इसको केस वाइज देखूं, माइनस वैल्यू विल बी बिफोर जीरो विच विल बी ओवर हियर, और इसके लेस देन लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी दैट वी नीड टू फाइंड आउट. बट वी कैन नॉट डू दिस क्योंकि लेस देन पे तो आंसर निकाल के देता है टेबल. टेबल लेस देन पे वैल्यू तो निकाल के देता है बट नेगेटिव वैल्यू पे आंसर नहीं देता. तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस वैल्यू 0 पॉइंट नेगेटिव थी. मैं इसी की पॉजिटिव डायग्राम बनाऊंगा बेटा, और जितना लेफ्ट साइड पे शेडेड है उतना राइट साइड पे भी शेडेड होगा. 0.667. तो आप को अगर नेगेटिव वैल्यू पे आंसर निकालना है तो बेटा आप इसका सिमेट्रिकल केस बनाएंगे, एंड दैट सिमेट्रिकल केस शोज कि अगर आपने ये ग्रेटर देन का आंसर चाहिए तो यू आर गोइंग टू सबट्रैक्ट 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 0.667 माइनस करवा दें. सो फ्रॉम टेबल यू आर गोइंग टू सी द वैल्यू. देखो बेटा फ्रॉम टेबल 0.6 आपने z के लिए देखनी है 0.6, देन 6, देन 7. 0.7454 और ऐड कर देंगे 23. तो 1 में से बेटा माइनस करवा दो. तो 0.2523 आ रहा है. दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर. अच्छा, दिस इज नॉट द आंसर. बेसिकली वी नीड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज.
तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस प्रोबेबिलिटी विद द, you got this probability 0.2523. तो देखो बेटा, since you need to find out the favorable outcomes, multiply by 450. So 0.2523 multiplied by 450, it is 113.3535. And since we need to find out the expected number of trees, अब ये कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है कि इसमें हम राउंड अप करें राउंड डाउन करें, तो आप दोनों ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो राउंड अप कर लेना ज्यादा बेटर है, 114, क्योंकि 0.5 लिखा हुआ है, तो राउंड अप करने ज्यादा बेटर है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, 114 ट्रीज दैट यू कैन एक्सपेक्ट, विच इज लेस देन 18.2 जिनकी हाइट है। Now in part B, what they are saying, अच्छा बेटा, in this question the height in meters of red pine trees are normally distributed with mean 23.4, standard deviation sigma. It is known that 26% of red pine trees have height greater than 25.5 meters. देखो उसने जो आपको डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है x is greater than 25.5 का, और प्रोबेबिलिटी दी हुई 26% which is 0.26. ठीक है ना? You got the mean 23.4, you got the sigma value, standard deviation. No sir, we need to find out the value of sigma. तो अगर मैं इसको डायग्राम वाइज थोड़ा सा स्ट्रक्चर करूं कि हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, तो देखो डायग्राम वाइज मैं इस तरह स्ट्रक्चर करूंगा इसको, हिस्ट्री डायग्राम का जरा हेल्प ले लेता हूं, कि राइट साइड शेडिंग करनी है, दैट इज लेस देन 0.5। देखो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वी नीड टू शेड राइट साइड विच इज 0.5 से कम है, विच इज 0.6। ग्रेटर देन मींस आपने राइट साइड को शेड करना है। तो लेफ्ट साइड पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर? 1 माइनस 0.26, तो 1 माइनस 0.26 इज 0.74. So I'm asking you what is the z value against 0.74? जो 0.74 के अगेंस्ट z वैल्यू होगी वो 0.26 के अगेंस्ट भी होगी। बस फर्क ये कि टेबल हमें लेस देन कहां से निकाल के देता है, ग्रेटर देन कहां से निकाल के नहीं, ग्रेटर देन से आंसर निकाल के नहीं देता। तो हम टेबल पे जाएंगे, लेस देन पे 0.74, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट z मालूम करूंगा। तो 0.74 के अगेंस्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। जीरो पॉइंट सेवन फोर, 0.7389 और 0.7389 में अगर मुझे मैं 11 ऐड कराऊंगा ना, तो आई गेट 0.74 अगर मैं 11 ऐड कराता हूं इसमें। बट अगर मैं ऐड वाले कॉलम में जाता हूं, मेरे पास 13 है या फिर 10 है, 13 है या फिर 10 है, तो 11 से नियरेस्ट कौन सा है? 10 है, 13 तो नहीं है। तो मैं नियरेस्ट को ज्यादा, नियरेस्ट को प्रायोरिटी देता हूं। तो बेटा 0.643, दिस इज गोइंग टू बी योर 0.643 के अगेंस्ट बेटा z की वैल्यू दिखूंगा, एंड दैट विल बी द नियरेस्ट केस। ठीक है? अब देखो मेरे पास z की वैल्यू आ गई, और यहां से मैं z निकालता हूं सर, वैल्यू माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज z वैल्यू 0.643 एंड दैट विल बी द पॉजिटिव वैल्यू। तो 25.5
minus 23.4 is 2.1 divided by sigma, and then your sigma value is going to be 2.1 divided by 0.64. Is sigma value is 3.265, or it's going to be 3.27 meters. All right. Moving on to question number 5. In a class of 21 students, there are 10 violinists, 6 guitarists, and 5 pianists. A group of 7 people to be chosen. From these 21 students, the group will consist of 4 violinists, 2 guitarists, and 11 pianists. So देखो यहाँ पर you're selecting people in how many ways? Group of 7 can be chosen. So देखो, we need a specific number of people. From 10 violinists, we need 4. 10C4. Grouping में बेटा order does not matter. That's why I'm using combination here. From 6 guitarists, we need 2. From 5 pianists, we need 1. So you'll get the answer 10C4 multiplied by 6C2 multiplied by 5C1, which is 15750. Right? On another occasion, now see, on another equation, a group of 5 will be chosen from 21 students. The group must contain at least 2 violinists. There's a word at least here. 2 violinists, at least 1 guitarist, at most 1 pianist. So let's just make these conditions here. We need to make 5 people. We need to choose 5 people. So look, we have violinist, guitarist, and the pianist. And how many violinists do we have? 10, 6, 5. We get 10, 6, and then 5. Total, we need to choose 5 people. To make sure that the sum should be 5. तो देखो, आपने किसी एक को फोकस करके चल लो, and then apply the conditions here. We need at least, at most 1 pianist. Maximum we need 1 pianist. So we can have 0 pianists as well, and we can have 1 pianist, maximum 1. So let's start with the pianist, क्योंकि pianist के पास conditions जो है ना वो 2 ही हैं. 2 ही केस हो सकते हैं, या तो 0 या तो फिर 1. At most means less than equals to. तो अगर मैं 1 pianist रखता हूं, at least 1 guitarist, let's have 1 guitarist. So in order to make a sum 5, 4 violinists आ जाएंगे. अच्छा, क्या 0 pianist के साथ और कंडीशन बन सकती है? Let's try. Let's have 2 guitarists and 3 violinists. देखो टोटल 5 बन रहा है हमारे पास. Let's have 0 pianists again. You can have 3 guitarists and 2 violinists. तो सम देखो 5 बन रहा है. अब देखो मैं एक और कंडीशन नहीं बना सकता. 0 pianist, 4 guitarists, although we have 6 guitarists, 4 guitarists and 1 violin. This will be wrong, क्योंकि we need at least 2 violinists. तो बेटा ये हमारे पास गलत हो जाएगा. We cannot have this condition here. ठीक है ना? अच्छा, 0 pianists, 5 guitarists, 0 violinists. No, we cannot have this, क्योंकि बेटा we need at least 2 violinists. यहां पर 0 violinist हो गया, ये कंडीशन भी नहीं हो सकती. अच्छा, let's have 1 pianist, 1 guitarist and 3 violinists. We have 5 here. Let's have 1 pianist, 2 guitarists, 2 violinists. We have some 5 here. इसके अलावा we don't have any conditions. So let's just first work
on these condition now and find out the answers. अब देखो सबके आंसर निकालने. 10 में से we got 4 violinist, 6 में से got 1, 5 में से we got 0, 10C3, 6C2. मैंने यहां पर ये इसलिए लिखे थे ताकि मैं टोटल बस सामने सामने देखता रहूं. 6C2, 5C0, 10C2, 6C3, 5C0, 10C3, 6C1, 5C1, 10C2, 6C2, 5C. You will have the answer 1260 from here. You'll have the answer 1800 from here. You'll have the answer 900 from here. You'll have the answer 3600 from here, and get the answer 3375. And the sum 10935 is the sum of these values. ये total selection हमारे पास निकल कर आ गई. देखो, there are teams of 15 runners. Question number 6 is team of 15 runners took part in charity run last Saturday. The time taken in minutes to complete the course by the runners from the Falcons and the runners from the Kites are shown on the table. And these are the times of the Falcons and Kites. Draw a back-to-back semi-linear diagram to represent this information with Falcon on the left-hand side. तो देखो, हमें बैक टू बैक स्टेमलिप डायग्राम बनानी है, नहीं डबल स्टेमलिप डायग्राम बनानी है, जिसमें उसने मेंशन करा हुआ है कि लेफ्ट साइड पे फैल्कन्स को रखना है, तो ऑब्वियसली राइट साइड पे काइट्स को रखूंगा मैं. देखो बेटा, वी हैव स्टेम एंड लीफ डायग्राम जिसमें द वेरी फर्स्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड स्टेम. इट्स कॉल्ड स्टेम. तो अगर मैं फैल्कन्स की बात करूं तो फैल्कन में नंबर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है. अच्छा, मजे की बात है, अच्छी बात ये कि दिस डेटा इज अरेंज्ड. तो मिनिमम इट कैन हैव अ स्टेम ऑफ 3 और 4 और 5 और 6 और 7. दैट्स द बेस्ट पार्ट के अरेंज करके डेटा दिया हुआ इन्होंने. अच्छा, काइट्स में कोई वैल्यू 3 में है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट काइट्स. 7 वैल्यू. हाँ, बस आप लेफ्ट टू राइट अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे आप. जैसे 3 के बाद 3 के साथ 8 9 लिखा हुआ है, सो यू गोइंग टू राइट 8 हियर एंड देन 9 हियर, कॉमा 9. देन 2 4 6 8, 2 4 6 8, then 0 1 2 6 8 9, 0 1 2 6 8 9, then 6 के साथ 4 9 6, 4 और 9, और 7 के साथ सिर्फ 6. तो फर्स्ट डिजिट इज स्टेम एंड उसके बाद जो जितने भी डिजिट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज लीव्स ओवर हियर. काइट्स का डेटा देख लेते हैं. 3 के साथ वी ओनली गॉट 2, 4 के साथ वी गॉट 0 0 twice and then 5 7 8, 0 0 twice, then 5 7 8, then 5 के साथ we got 2 4 8 9 9. सिक्स के साथ we got 0 1 3 5, 7 के साथ कोई डेटा ही नहीं है. एंड देन यू हैव टू शो द की, क्योंकि आपने स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाई है. व्हाट डज इट मीन? यू डोंट नो, तो आपने की जरूर बनानी है. यहाँ पर की मीन्स कि आप किसी भी एक स्टेम को पिक कर लो. जैसे आपने 5 को पिक कर लिया, या आप 6 को पिक कर लो, तो आप बताओगे यहाँ पर 6 से लेफ्ट साइड पे आपने 4 वैल्यू ले ली, 6 से राइट साइड पे आपने 0 वैल्यू पिक कर ली. राइट साइड से कोई भी एक वैल्यू, लेफ्ट साइड पे कोई एक वैल्यू. और यहां पर आप बताओगे कि इसका मतलब क्या है. इट मीन्स 64 minutes for Falcons
and 60 minutes for kites. या आप इसका पूरा मतलब बताओगे, इसका मतलब है क्या? ओके, पार्ट बी में दे आर आस्किंग फॉर द मीडियन इंटरकॉर्डियल रेंज फॉर द टाइम्स ऑफ द फैल्कन. अच्छा बेटा, वी नीड टू फाइंड आउट द मीडियन है. तो मीडियन का फॉर्मूला होता है 1/2 n+1 फॉर अनग्रुप डेटा. देयर आर 15 वैल्यूज, 15 + 1 इज 16, 8 पोजीशन हो जाएगी. So we're going to see on the 8th position, beta, हमारे पास what is the value? So on the 8th position, you can just count the values here. So on the 8th position, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Already data was arranged. तो यहाँ से देख लो, या यहाँ से देख लो. So on the 8th position, you have 51. So your median value is 51 minutes. और देखो, median से पहले whatever the mid value is, that is 44 is your Q1. और मीडियन के बाद बेटा whatever, बहुत छोटा सा डेटा इसलिए यहां पर डायरेक्टली निकाल रहा हूं, whatever the mid value is your Q3 मीडियन के बाद. So your Q1 is 44, Q3 is 59. So your IQR will be Q3 minus Q1, 59 minus 54, 44. So 59 minus 44 is 15 minutes. That will be your IQR here. Okay. In next question, they're saying, let X and Y denote the times in minute of a runner from the falcons and runner from the kites, respectively. They have given you some data, sum of X square, sum of Y square. Find a mean and standard deviation time taken by all 30 nearest runners from the two teams. Find a mean and standard deviation of the time taken by all 30 runners from the two teams. So देखो बेटा, first you know this, there are 30 runners. अगर मुझे इन 30 रनर्स का मीन चाहिए तो बेटा मैं दोनों का सम ऐड करवा लूंगा, डिवाइड बाय देयर नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर 30 पीपल. तो 792 प्लस, देखो मीन होता क्या है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. तो एक्स का सम अलग था, वाई का सम अलग था, मैंने दोनों को ऐड कर लिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. तो 792 प्लस 783 डिवाइड बाय 30, इट इज 52.5. ठीक है. Then the standard deviation of the time, again we need to find out the standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले काम करते हैं, वेरिएंस निकाल लेते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है, तो स्क्वायर रूट लेना होता है बस हमें. तो देखो बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर. दैट इज अ वेरिएंस फॉर्मूला. लेकिन यहां पर दो वैल्यूज हैं, एक्स और वाई, सबका निकालना है. तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज 30 माइनस कंबाइंड मीन का होल स्क्वायर यानी 52.5 का होल स्क्वायर. तो ये जगह 4222223 प्लस that is the xy square and that is the x square 43504 divided by 30. You will get the answer 101.3167. 101.3167 का बेटा अगर आप स्क्वायर रूट लोगे, you get the standard deviation, that is 10.06, 10.1 minutes, the standard deviation.
ठीक है. Now for question number 7. In a game, player attempt to score a goal by kicking a ball into a net. The probability that Leno scores in a goal is 0.4 on any attempt. So independently of all the other attempts. So independent events है, probability of success दी हुई है. The random variable x denotes the number of attempts that it takes Leno to score. अब देखो x is the number of attempts जिसमें वो स्कोर कर जाएगा. तो x इक्वल टू 5, यानी वो 5 अटेम्प्ट करेगा तो उसमें वो स्कोर कर जाएगा. उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है. तो देखो अगेन नंबर ऑफ टाइल्स आर नॉट फिक्स, बट यहां पर आप इसको ये भी कह सकते हो 5 दफा गोल करेगा तो 5वीं दफा में वो स्कोर कर जाएगा. यानी अगर पहली दफा में कर जाता तो सेकंड टाइम में नहीं जाता वो. तो random variable x denote the number of attempt that it takes Leno to score a goal. तो probability of success is 0.4, probability of failure is 0.6. So you can say कि पहली दफा में स्कोर नहीं करा, सेकंड दफा में नहीं करा, थर्ड में नहीं करा, फोर्थ में नहीं करा, फिफ्थ में कर लिया. So your answer is going to be 0.6 power 4 मतलब है 0.54. It is 162 upon 3125. यह आपका आंसर आ गया. अब they're saying he has scored the goal minimum 3 attempts में, maximum 7 attempts में. तो what does it means? x इक्वल टू 3 पर 3 टाइम्स में स्कोर कर दिया, या 4 में कर दिया, या 5 में, या फिर 6 में, या फिर 7 में स्कोर कर गया. तो देखो 3 पे स्कोर करने की प्रायोरिटी, पहले में स्कोर नहीं करा, दूसरे में नहीं करा, थर्ड में स्कोर कर लिया, या पहले में नहीं करा, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, फोर्थ अटेम्प्ट में स्कोर कर गया, या फिर फर्स्ट में नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नहीं करा स्कोर, फिफ्थ में कर गया. या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में किसी में नहीं करा, सिक्स में कर गया. दीज आर ऑल योर पॉसिबल आंसर्स. इन सबको ऐड कर लेंगे. 25938 डिवाइड बाय 78125 आंसर आ जाएगा. डेसिमल में चाहे तो कन्वर्ट कर लें. 0.3320 या 0.332 इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेनो स्कोर हिज सेकंड गोल ऑन और बिफोर हिज फर्स्ट फिफ्थ अटेम्प्ट. अब देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें थोड़ा सा हमें वर्किंग करनी पड़ेगी. देखो सेकंड गोल ऑन और बिफोर इज फिफ्थ अटेम्प्ट लिखा हुआ है यहां पर. इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझो. इसका मतलब ये है कि बेटा अगर मैं
फर्स्ट अटेम्प्ट पे स्कोर कर गया पहला गोल, दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज 0.4। तो पहला गोल तो ऐसी बात है, अगर मैं इसमें स्कोर कर गया तो सेकंड गोल मैं यहां पर यूं बना लेता हूं, सेकंड गोल मैंने सेकंड अटेम्प्ट में कर लिया। तो देखो बिफोर फिफ्थ अटेम्प्ट मेरा स्कोर बन गया, एक केस ये हो गया मेरे पास। दूसरा केस ये हो गया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने स्कोर कर लिया, सेकंड में, अच्छा ये सेकंड में भी स्कोर कर जाएगा, सिक्योरिटी 0.4 ही हो जाएगी। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने स्कोर कर गया, सेकंड में मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, थर्ड में मैंने स्कोर कर गया, ठीक है ना, थर्ड में मैं स्कोर कर गया। तो सेकंड गोल बिफोर फिफ्थ अटेम्प्ट, सेकंड गोल बिफोर फिफ्थ अटेम्प्ट। अब फर्स्ट में मैंने अटेम्प्ट कर लिया, गोल हो गया। सेकंड गोल पे, सेकंड गोल सेकंड अटेम्प्ट पे नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट पे भी नहीं हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट पर हो गया सेकंड गोल मेरा। तो एक केस तो ये हो गया मेरे पास, और एक केस ये हो जाएगा बेटा कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे मेरा गोल हो गया, सेकंड पे नहीं हुआ सेकंड गोल सेकंड अटेम्प्ट पे, थर्ड पे भी नहीं हुआ, फोर्थ अटेम्प्ट पे भी सेकंड गोल नहीं हुआ, फिफ्थ अटेम्प्ट पे सेकंड गोल हो गया मेरे पास। तो मैं यहां पर लिखूंगा 0.4। तो मेरा सेकंड गोल फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ और फर्स्ट फिफ्थ, ठीक है ना। इस तरह मेरे पास सेकंड गोल की अटेम्प्ट्स में आ रहा है कि मेरा सेकंड गोल या तो सेकंड अटेम्प्ट पे या थर्ड पे या फोर्थ पे या फिफ्थ पर है। लेकिन ये भी तो हो सकता है मेरा पहला गोल सेकंड अटेम्प्ट पर हो, दूसरा गोल थर्ड अटेम्प्ट पर हो। तो ये भी तो कंडीशंस आ सकती है ना हमारे पास। तो हमें वो सारी कंडीशंस भी देखनी है। अभी तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे पहला गोल रखा हुआ है, लेकिन अगर मेरा पहला गोल फर्स्ट अटेम्प्ट पे ना हो, क्या पता वो सेकंड अटेम्प्ट में भी हो सकता है, क्या पता वो थर्ड में भी हो सकता है, क्या पता वो फोर्थ में भी हो सकता है। तो तब केस क्या बनेगा, तब केस क्या बनेगा। तो देखो ये कंडीशन में तो हमारे पास पहले और सेकंड गोल में ही कहानी खत्म हो रही है। तो हम पहले गोल में पहला अटेम्प्ट नहीं, पहला गोल सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड गोल हो गया। लेकिन बेटा यहां पर ये भी तो सकता है ना कि सेकंड गोल अगर थर्ड अटेम्प्ट पर हो रहा है, तो पहला गोल फर्स्ट में भी हो सकता है और सेकंड अटेम्प्ट में भी हो सकता है। तो ये वाली कंडीशन, आई एम गोना हैव दिस कंडीशन एज टू कंडीशंस हियर। मेरे पास ये कंडीशन, इस तरह की दो कंडीशंस होंगी कि ये पहला गोल, जो मेरा पहला गोल है, ये फर्स्ट में भी हो सकता है और सेकंड में भी हो सकता है। तो पहले में 0.6, दूसरे में 0.4, ये भी हो सकता है। और पहले में 0.4, दूसरे में 0.6, ये भी हो सकता है। सिमिलरली मेरा पहला गोल अभी तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रखा है, क्या पता ये सेकंड पे या थर्ड पर हो। तो ये वाली कंडीशंस कितनी बनेंगी जिसमें फोर्थ अटेम्प्ट में सेकंड गोल होगा, कितनी कंडीशंस बनेंगी। तो आंसर है 3C1। क्यों 3C1? क्योंकि बेटा मेरा पहला गोल इन तीनों कंडीशन में किसी एक में हो सकता है। तो मैं लिखूंगा 3C1। इस तरह सेकंड गोल तो फिफ्थ अटेम्प्ट पर है, लेकिन पहला गोल बेटा इन चारों अटेम्प्ट में पहले में भी किसी में भी हो सकता है। तो बेटा आई एम गोइंग टू राइट 4C1 हियर। मेरा पहला गोल इन चारों में किसी अटेम्प्ट में भी हो सकता है। अभी तो मैंने फिक्स करके बताया ना मैंने, लेकिन मेरा पहला गोल इन चारों में किसी में भी हो सकता था, 4C1 कर दिया मैंने। और ये तो कंडीशन ही एक ही बनेगी। तो बेटा इन सबके आंसर मैं मल्टीप्लाई करके निकालूंगा। ये बन जाएगा 0.16, ये बन जाएगा 0.192, ये बन जाएगा बेटा 0.1728, ये बन जाएगा 0.1328, 13824। इन सबको ऐड कराऊंगा, 0.2072 अपॉन 3125 आ रहा है। ये आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा
0.66304, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा. Now the last question, it says Leno has 75 attempts to score a goal. Using a suitable approximation, find a probability that Leno score more than 28 goals but fewer than 35. Adego, now the attempts are increased. N is too large now. And you need to calculate the probability of more than 28 and less than 35. So when N is too large, we follow the normal approximation. Normal distribution follow करेंगे. पहली बात, अच्छा, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमसे मांगता है x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा आस्क फॉर द मीन वैल्यू and the standard deviation and the variance. So what is the mean value from the binomial? Because previously it was a discrete random variable ना. तो mean होता है बेटा np and your variance is npq. N is 75, p was 0.4, 75 0.4, q was 0.6. Finally, we'll get the answer of mean. Which is 30, which is 18. So x follows normal distribution, mean is 30, variance is 18. Now, since we need to calculate the answer of this, but before that, मैं यहां पर CCR कर लूंगा, continuity correction. अगर आप कभी भी डिस्क्रीट से रैंडम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल से करोगे तो बेटा आपने उसको CCR करना है. यानी ये दिस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 2.8 लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है, तो ये जगह 28.5 आप ऐड करा दोगे. x इज लेस देन 35 लिखा हुआ है, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करा दोगे. नाउ यू विल कन्वर्ट इनटू z वैल्यू. 28.5 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन वाज 30, स्टैंडर्ड डेविएशन 18, अंडर 18 हो जाएगा. So I'll convert that into z. तो 34.5 माइनस मीन कॉन्स्टेंट डेविएशन, ये 18 हो जाएगा, √18. z की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहां पर? वी नीड टू कन्वर्ट दैट z वैल्यू. सो 28.5 minus 30 divided by √18. माइनस 0.355. देखो ये माइनस 0.3535 है. पहले मैं इसको ना 4 डेसिमल प्लेस पे लिखूंगा. एंड देन 34.5 माइनस 30 डिवाइड बाय √18. 1.60606. पहले आपने 4 डेसिमल प्लेस पे लिखना है. देन कन्वर्ट इट इनटू 3 डेसिमल प्लेस, क्योंकि z की 3 डेसिमल प्लेस पर होती है. देखो 1.061, और क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है, you'll calculate the probability z is less than में से 1.061 की probability माइनस कर दोगे. किसकी probability? z is less than माइनस 0.354 की. लेकिन लेस देन पे नेगेटिव की वैल्यू आंसर निकाल नहीं सकते हम लोग. दिस इज द केस. तो 1 माइनस z is less than 0.354 का आंसर निकालेंगे. एट द एंड z is less than 1.061 की प्रोबेबिलिटी -1 प्लस
Z is less than 0.354 का आंसर निकालेंगे. 1.061 की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? तो 1.061, 0.8554 उसमें 2 ऐड करेंगे, 0.8556 -1 प्लस 0.354, 0.354, 0.6368 plus 14 plus 15, 0.6383. Just add these values, subtract 1. At the end, get the answer 0.49. So 0.494 is going to be your final answer. Okay? So that's it for the paper.